Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kaka channel. Dear students, we have discussed in our previous part 4 lectures about the environmental science. We discussed about the environment, the 4 different components of the environment, and in our previous fourth part we discussed about the pollution and its types as well. So in this lecture we will be talking about the solid waste management system, that how this pollution can be tackled around the world as well as in Pakistan. What are the systems, what are the precautionary measures in order to take for controlling the pollution in the world. So here comes the solid waste management. It refers to the systematic management of generation, collection, transfer, treatment, recycling, recovery, and disposal. This is the hierarchical system where the solid waste management or the solid waste materials are managed. It can be remembered, so this definition can be remembered by the small word, the GC, TTRND. GC, the generation, collection, transfer, treatment, recycle, reuse, recycle, then the disposal. So this definition can also be remembered by remembering this short spelling of the word. And this management is being characterized according to its origin, content and hazardous potential. ओरिजिन में देखें कि भाई इसकी ओरिजिन कहां से आती हैं, आइदर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शनल वेस्ट प्रोडक्ट्स और डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, घरों से जो खाने पीने की आशियां और ऐसे यूजेबल मटेरियल जो होते हैं आफ्टर यूज वो फिर फेंके जाते हैं मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे, लैंडफिल्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ कम्युनल सोसाइटीज में. तो इट इज द डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और द कंस्ट्रक्शन. देन कम्स इट्स कंटेक्स्ट, इस कंटेंट आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ठीक है, ये दो कंटेंट होते हैं जिस पर बेस करते हैं तमाम सॉलिड वेस्ट. देन कम द हैजर्डस पोटेंशियल एंड इट इज categorized into 4 types, either the ignitability, the corrosivity, radioactive and toxicity. Ignitability मतलब it is capable of catching the fire easily. Corrosivity, ठीक है, which corrodes the metal easily. Or the radioactivity, which reacts easily with other matters. And the toxicity, either these solid waste are toxic or non-toxic. According to the World Bank, it is reported that every year 1.3 billion tons of solid waste is deposited per year. हर साल 1.3 बिलियन टन, अरब टन जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलीज होता है पूरी वर्ल्ड से. और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि भाई इट विल इंक्रीज अप टू 2.2 बिलियन टन्स. ठीक है, और ये हर साल बढ़ रहा है विद द रेशियो ऑफ इट्स डबल. और जब पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं, दे एक्सक्रेटेड with the value of 20 million tons, 20 million tons per year. और इसको अगर पर डे हम करें तो ऑलमोस्ट 59,000 टन्स पर डे. हर दिन पाकिस्तान से इतना तकरीबन 60,000 टन्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट दे आर रिसाइकल्ड और रीयूज्ड. ठीक है, वो फेंके जाते हैं इन दी लैंडफिल्स. अगर एवरेज फैमिली का अंदाजा लगा दें, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, द एवरेज फैमिली और द मिडिल क्लास दे एग्जिट आउट द सॉलिड वेस्ट अप टू 1.89 kg to 4 kg पर डे. और ये एवरेज बनता है अबाउट द रूरल एंड अर्बन एरियाज. जब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को मिला देते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 0.32 या 0.3 kg टू 0.6 kg एवरेज. और जब मिडिल क्लास की एवरेज देखते हैं, इट इज ऑफ अबाउट 1.8 और अबाउट 2 kg पर डे. हर घर से मिडिल क्लास है 2 kg
वेस्ट मटेरियल निकलता है। जब एलीट क्लास के घराने देखते हैं, so they exit out of about 4 kg of solid waste per day. So dear students, now we'll understand how this solid waste is managed through a systematic way by the solid waste management system. So it is the activity associated with the management of municipal waste. जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं शहरी आबादी में से, ठीक है, बाई मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम द डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी, ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जो वेस्ट निकलती है उनको मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इट इज कॉल्ड एज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 3 प्रोसेसेस. First occurs the generation, waste generation, then the collection, then in the end the waste disposal. So waste generation is the waste materials are no longer in use, or either they are either thrown away or collected for disposal. ठीक है, जितने भी डोमेस्टिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जो कि यूज में नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो उनको एक बार यूज किया जाता है अपना मकसद हासिल करके, ठीक है, जो फिल्थ मटेरियल्स हैं उनसे रह जाती हैं, ठीक है, उनको या तो फेंका जाता है या तो उनको वापस कलेक्ट करके दे आर यूज्ड फॉर डिस्पोजल. ठीक है, देखें देयर आर 2 ways of the collection of the waste products. First is the primary collection, then comes the secondary collection. प्राइमरी कलेक्शन वो होती हैं जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स सोर्सेज, जहां से वो जनरेट हुए थे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जहां से वो जनरेट हुए थे वहां से उनको कलेक्ट किया जाता है. देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रांसफर स्टेशंस, लैंडफिल डिस्पोजल साइट्स. ठीक है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर, मुख्तलिफ रोड्स पर ऐसे लैंडफिल बनाए होते हैं जहां पर मुख्तलिफ स्टोर्स या हाउसेस, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज होती हैं उनका एक डिस्पोजल साइट्स होते हैं, वहां पर अपने घर का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वहां पर डाल दिया जाता है. सो जहां पर ये जनरेट हुआ था और ठीक है वहां से उठा के वेस्ट लैंडफिल पर स्टेशन पर पहुंचाना इज द प्राइमरी कलेक्शन. देन कम्स द सेकेंडरी collection. Secondary collection is the second process which these solid waste are collected from the communal points. ठीक है, वही पॉइंट है जहां पर from its source, उनके सोर्सेज से जहां पर कलेक्ट किए गए थे वहीं से फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज उनको उठाती हैं. देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रिसाइकलिंग सेंटर्स, मुख्तलिफ शहरों में या शहरी आबादी से दूर कहीं जाकर वहां पर रिसाइकलिंग सेंटर्स बने होते हैं जहां पर दे आर अंडर प्रोसेस फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. ठीक है, देन कम्स एट द लास्ट द वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, अब जब यहां तक प्रोसेस हुआ वहां पर रिसाइकलिंग सेंटर्स में वो फिल प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए. सो द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय डिस्चार्ज, डिपॉजिट, ठीक है, इंजेक्शन और डंपिंग, स्पिलिंग, लीकिंग इनटू और ऑन लैंड इन अ लैंडफिल. मुख्तलिफ लैंडफिल्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ साइट्स होते हैं जहां पर इन वेस्ट प्रोडक्ट को आइसोलेट किया जाता है और दे आर अंडर प्रोसेस. उनसे वापस या तो रीयूज किया जाता है या तो रिसाइकिल किया जाता है या तो गैस रिकवरी होती है इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी के लिए. ठीक है, जहां पर वापस रीयूज होके एनर्जी बना दिया जाता है. देन कम्स द वेस्ट हायरार्किकल कॉन्सेप्ट. दिस हायरार्किकल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1975. जो हायरार्किकल कॉन्सेप्ट है ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड in the year 1975 by the European Union, by European Union Waste Policy. इनको नाम दिया है वेस्ट प्रोडक्ट्स पॉलिसी. ठीक है, यूरोपियन यूनियन जितने भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट दे आर 27 to 28 कंट्रीज. ठीक है, इट इज द यूनियन ऑफ 27 to 28 countries. They have made a policy in order to tackle this solid waste management in the year 1975. वो ये है कि भाई जो सॉलिड वेस्ट है सबसे पहले तो ये काम किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए, अवेयरनेस दी जाए ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को पैदा करना कम की जाए. ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा पैदा ना करे बल्कि lowering the production of waste products. ठीक है, जब एक बार पैदा हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स देन दे शुड बी रीयूज. ठीक है, बहुत सारे लोगों को आदत है, बहुत सारे
कंपनीज या इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक चीज एक बार यूज किया जाता है. फॉर सपोज आई हैव वॉर्न दिस कोट और माई ड्रेस, ठीक है, नॉट वंस बल्कि ट्वाइस, ठीक है, मैं हमेशा जब तक मुझे चाहिए मैं अपना ड्रेस, अपने शूज, अपने जो मुझसे रिलेटेड वो चीजें हैं मैं उसको यूज करता रहूं जब तक कि वो यूजेबल हो, ठीक है. जब वो यूज से बाहर निकल जाते हैं दे आर रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल किया जाता है, उनसे फिर बड़े प्रोडक्ट से छोटे प्रोडक्ट बने जाते हैं, ठीक है. रिसाइकलिंग के बाद जब उनको लैंडफिल में लेके जाया जाता है दे आर रिकवर्ड, द एनर्जी आर रिकवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, एंड वही लैंडफिल जो है इज सेफ प्लेस वेयर आर दिस सॉलिड वेस्ट मैनेज आर मैनेज प्रॉपर्ली. So thank you so much for watching. See you in the next lecture.